آزادی کی فضاؤں میں رہنے والوں، انسانوں کا حق تسلیم بھی کرتے ہو، اور کشمیر میں ظلم و ستم کرتے ہیں جو، ان کے لیے کوئی حق ستم نہیں رکھتے ہو۔ گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو یونائٹڈ پیریا۔ کیا فیصل ایدھی دوسرے عبدالستار ایدھی بن سکیں گے؟ اور پھر بات کریں گے بھارت کی، کھل کر سامنے آ گیا۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ۔ ایدھی فاؤنڈیشن کو چندے میں کمی کا خدشہ کیوں ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی انتہا، 36 کشمیری شہید۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی نئی لہر سے بھارت خوف کا شکار۔ Ladies and gentlemen, this terrorist, Burhan Wani, had declared the Indian army as his biggest enemy. بھارتی میڈیا کی بوکھلاہٹ، پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا۔ لشکر طیبہ کے چیف حافظ سعید نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کو کشمیر کے حالات کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیا کشمیر میں آزادی کی نئی لہر بھارت کے لیے خطرہ بن چکی ہے؟ پوچھیں گے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید احمد سے، معروف اینکر احمد قریشی سے، سری نگر میں نظر بند حریت رہنما شبیر شاہ سے، اور ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی سے۔ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ مقبوضہ کشمیر کی جنت نظیر وادی ایک بار پھر بھارتی مظالم کا شکار ہے، مگر اس بار تھوڑا سا معاملہ فرق ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہوئی ہیں جو ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی، کھل کر بھارت کا چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ انٹرنیشنلی اس کو دیکھا جا رہا ہے، انٹرنیشنلی اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ آئی اسٹارٹ واشنگٹن پوسٹ نے بھی آج اس حوالے سے لکھا ہے، 12 جولائی کی انفیکٹ یہ کلپنگ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ان کشمیر انڈین سیکورٹی فورسز یوز گنز دیٹ آفن بلائنڈ پروٹیسٹرز۔ کہتا ہے اخبار بھارتی فوجی مظاہرین پر چھروں والی بندوقیں استعمال کر رہے ہیں جس سے لوگ اندھے ہو رہے ہیں۔ بھارتی فوج مظاہرین کی کمر سے اوپری حصوں خاص طور پر آنکھوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق 77 افراد کی آنکھوں میں چھرے لگے ہیں۔ ایک 9 سالہ بچی کی آنکھ میں چھرا لگا ہے جو اپنے گھر کی کھڑکی سے مظاہرہ دیکھ رہی تھی۔ بھارتی فوج کی مظاہرین پر فائرنگ سے اب تک 36 کشمیری شہید ہو چکے ہیں، اور یہ تمام معاملہ اس وقت زور پکڑ گیا جب بھارت نے بے دردی سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ برہان وانی کو شہید کر دیا۔ جو ذکر کر رہا ہے واشنگٹن پوسٹ سٹوری کا، اس حوالے سے دیکھیے زارا کیا کہتی ہے۔ لیٹس واچ دیٹ۔ آپ کو کیسے لگی؟ پٹاخے سے لگی آپ کو؟ کس نے مارا پٹاخہ؟ پولیس والے نے پٹاخہ مارا۔ ذرا دکھا کہاں لگے؟ پیر میں بھی لگی؟ پیر میں بھی لگی؟ چھوٹی سی بچی کی کلپنگ آپ نے دیکھی ہے۔ اس وقت بھارت کر کیا رہا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ برہان وانی کے لہو نے کشمیر کی آزادی کو ایک نیا ولولہ تو دیا ہے، ان کی جو کیمپین ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بھارت کا ایک بہت برا چہرہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ برہان وانی صاحب کے والد کیا کہتے ہیں؟ لیٹس واچ دیٹ۔ آزادی برہان کا ہی نہیں ہے، یہ سبوں کا مقصد ہے، ہمارا بھی، کیونکہ جو حالات ہیں انڈیا کے، مسلمانوں کی اتیاچار ہو جاتا ہے۔ ہم یہ چلا گیا یہاں سے ٹرک ڈرائیور، وہاں سے اس کو مارا کیوں، یہ مسلمان ہے، یہ کشمیری ہے، ایسا بہت بار ہوا ہے۔ تو اس ظلم سے یا بیف جو ہمارا حلال ایک ہے ہم قربان کرتے ہیں، اس پر پابندی لگتی ہے، تھوڑا تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پہلے خدا پھر بیٹا، پہلے قرآن پھر بیٹا،
पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर बेटा, पहले बेटा फिर खुदा नहीं है, पहले खुदा, फिर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कुरान और फिर बेटा। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय मुजालिम की वजह से सरापा एहतजाज है, मगर भारतीय मीडिया एक दफा दोबारा मुजाहरा कर रहा है कि किस कदर बायस्ड है, अपने ही अवाम या अपने ही लोगों की आवाज नहीं दिखा सकता, वो लोग उसके अपने हैं भी कि नहीं। दोबारा पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, बरमला लगाया जा रहा है। लेट्स वॉच इंडियन मीडिया। पाकिस्तान के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने तुरंत बयान जारी कर न सिर्फ बुरहान को कश्मीरी लीडर बताया, बल्कि ये भी कहा कि उसकी मौत से वो सदमे में है। For over 72 hours now since the successful killing and much wanted kill of Hizbul Mujahideen commander Burhan Wani, आतंकवादी बुरहान वानी को ढेर किए जाने के बाद से कश्मीर में हालात तनावपूर्ण हैं। लेकिन क्या ये तनाव, वहां की हिंसा, सब कुछ पाकिस्तान से प्लान हो रहा है? कश्मीर में एक आतंकी के एनकाउंटर के बाद हो रही हिंसा ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का दोहरा चेहरा एक बार फिर सामने ला दिया है। कश्मीर घाटी इन दिनों जिस हिंसा की आग में झुलस रही है, उसे किसी और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रहे आतंक की चौकड़ी ने लगाई है। भारतीय हुकूमत बार बार बड़े ही भोंडे तरीके से पाकिस्तान पर इल्जाम डालने की कोशिश करती है, मगर सच सच होता है। खुद भारत के अंदर के हल्के ये तस्लीम कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में एहतजाज की वजह भारतीय मुजालिम हैं। मारूफ भारतीय मुस्तनिफा अरुंधति रॉय इस हवाले से क्या कहती हैं, लेट्स वॉच हर। The protests happened and the police started to shoot into the crowd and kill young boys, and it just became bigger and bigger and bigger till now already 60 or 70 young people have been killed. But the point is that it's never been so huge, the protests. It's gone on for months. They're not being able to diffuse it. They don't know who to arrest. They don't know who to kill. They are longing for it to become the same old, some militants that they can say are sent from Pakistan. But they can't deal with these basically unarmed crowds, stone throwing, stone pelters. They don't know how to deal with them. So every day the anger increases and a few more are killed and the anger increases. आज आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत की और कहा है कि मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। दुनिया कश्मीरियों की ख्वाहिशात का एहतराम करे। आर्मी बरादरी मसला कश्मीर को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करे ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम हो सके। इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी भारतीय हुकूमत की कश्मीरी अवाम पर मुजालिम की मजम्मत की, जिसकी वजह से भारतीय मीडिया में शदीद गम व गुस्सा पाया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जुल्म व तशद्दुद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद की और आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक के खुदेदारियत को तस्लीम करके ही कश्मीर के मसले का हल मुमकिन है। एक नई मूवमेंट हमें नजर आ रही है कश्मीर में। ये मामला कहां तक जाएगा, पाकिस्तान का रूल क्या हो सकता है? आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग ट्राइम। एंड वेलकम बैक। कश्मीर में इस वक्त जो हो रहा है इसका तरीका क्या है, हल इसका क्या है? आई स्टार्ट विद यू हाफिज साहब, मगर पहले मैं चाहूंगी आप भारत में आप एक बार फिर बड़े मशहूर हो गए हैं और भारतीय मीडिया आपके बारे में क्या कह रहा है तो वो जरा देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी। भारतीय मीडिया में हाफिज सईद एक दफा दोबारा भरपूर तरीके से हर खबरनामे में, हर एनालिसिस में सुनाई दे रहा उनका नाम। लेट्स वॉच दैट। खबर आ रही है किस तरीके से हाफिज सईद ने एक शोक सभा की, यानी कि कश्मीर में बुरहान का जब से मार गिराया गया उसके बाद ये देखें आप तस्वीरें, एक तरफ पाक पीएम तक कश्मीर में दखल देते हैं तो हाफिज सईद भी सक्रिय है। हाफिज सईद ने मुजफ्फराबाद में आतंकी बुरहान अली के लिए शोक सभा बुलाई है। हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन ने पीओके के मुजफ्फराबाद में बुरहान वानी के लिए मातम मनाया और सैयद सलाउद्दीन वहां पर हाफिज सईद के साथ मौजूद था। हाफिज सईद की इन तस्वीरों से यह साफ है कि कश्मीर में किस तरह आम लोगों को और अलगाववादियों को भड़काया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें। अल्लाह के दीन की मदद करते हैं, ऐ मुसलमानों सब इसी तरह दीन की मदद किया और फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। पीओके में बुरहान वानी की शोक सभा में हाफिज सईद के साथ हिजबुल मुजाहिदीन चीफ
सैयद सलाहुद्दीन ने कश्मीर के नौजवानों को भड़काने का प्लान बनाया। हाफिज सईद वहां अपने साइबर सेल के सदस्यों के साथ पहुंचा था। वहां पर हाफिज सईद ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी गतिविधियां तेज करने के लिए अपने लोगों से कहा। एक तरफ मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और लश्कर चीफ हाफिज सईद है, तो उसके साथ आतंकियों के संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन है। हाफिज साहब, आपने देखा क्या आप कर रहे हैं कि पूरा का पूरा भारतीय मीडिया आज तक आपसे नाराज रही, तो हमने कुछ क्लिप्स दिखाई हैं, मेरे पास अखबारात की कटिंग्स हैं, इनमें भी आपके बारे में इसी किस्म की बातें लिखी हुई हैं। देखिए जी, मुझे तो हैरत हो रही है, क्या इनकी मालूमात हैं। ये कह रहे हैं जी मुजफ्फराबाद में हाफिज सईद ने और सैयद सलाहुद्दीन ने ये किया। मुजफ्फराबाद में तो मैं गया ही नहीं, ये तो इस्लामाबाद में गायबाना जनाजा था बुरहान वानी का, तो उस जनाजे के अंदर मैंने शिरकत की है। ये मुजफ्फराबाद में था ही नहीं। ये मालूमात है इनकी सिर्फ प्रोपेगंडा और झूठ पर मबनी प्रोपेगंडा, यानी मामूली सी एक बात लेकर और वो भी गलत, और उसके ऊपर जनाब प्रोपेगंडे का एक लंबा चौड़ा। ये मैं आप उनको इनकी पहली गलती बता रहा हूँ। ये मुजफ्फराबाद नहीं, ये इस्लामाबाद का गायबाना जनाजा था। ऐसी ही इनके पास मालूमात होती हैं और गलत मालूमात के ऊपर बेस करके, और इतना प्रोपेगंडा इंडियन मीडिया सिवाय प्रोपेगंडे के कुछ जानता ही नहीं। इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि कश्मीर के अंदर जिस तरह खून बह रहा है। आज तो इंतहा हो गई है कि ज़ख्मी जो अस्पतालों में दाखिल किए गए, उनके अटेंडेंट्स आर्मी ने घुसकर उनके ऊपर गोलियां चलाईं। मैं तो हैरान हूँ कि इंडियन मीडिया को ये चीज़ें नज़र नहीं आती। क्या ये दुनिया के अंदर कश्मीरियों के आंसू, गिरता हुआ खून, आज ये कैफियत, बस सिर्फ इनको हाफिज सईद याद है। सच्ची बात यह है कि अपने तशद्दुद को छुपाने के लिए और अपने जुल्म पर पर्दे डालने के लिए इनको हाफिज सईद का नाम आता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा शुरू कर देते हैं। ये जनाब इनकी हिकमत अमली है, इसके सिवा इसके अंदर कुछ नहीं है। और गलत मालूमात, बेकार बातें, मुझे इसका जवाब दे ये सारा मीडिया। मुजफ्फराबाद में तो मैं गया ही नहीं, ना कोई वहाँ बात हुई है। इस्लामाबाद के जनाजे में मैं शरीक हुआ हूँ और इनके पास खबरें हैं नहीं, मालूमात है नहीं, झूठ की बातें जो हैं वो फैलाए जा रहे हैं। राइट, और अगर चले भी जाते हैं मुजफ्फराबाद तो वो कोई मना नहीं है आपको मुजफ्फराबाद जाना, बट अहमद अगर मालूमात के ऊपर एक नज़र डालें, लेट्स एक्सप्लेन टू द व्यूअर्स कि क्या हुआ क्या ऐसा कश्मीर में। कश्मीर में इस वक्त ये वो चीज़ हुई है जो पिछले 50-60 साल से हो रही है, जो कश्मीरियों के अंदर जो रिजेक्शन है, उन्होंने रिजेक्ट किया है इंडिया को, और ये चीज़ 50-60 साल से हो रही थी। जो नई चीज़ इस वक्त फरिया हो रही है, जो हमने बुरहान वानी की सूरत में देखा है कि 21-22 साल का नौजवान, एक खूबसूरत, एक हैंडसम यंग लड़का जिसके सामने बड़ा मुस्तकबिल था, उसने क्यों चूज किया, वो क्यों गया मिलिटेंसी की तरफ, वो क्यों कन्विंस्ड है, और वो अकेला नहीं है। आज आप वो तस्वीरें देखिए उनके घर की, फरिया परेशान होगी, मैं हैरान हो गया। उनके घर के बाहर जश्न की समा है, उनके घर के बाहर कश्मीरियों ने, घर वालों ने नहीं, कश्मीरियों ने जो है वो बाकायदा बैनर्स लगाए हुए हैं, पैनाफ्लेक्स लगाए हुए हैं, पोस्टर्स लगाए हुए हैं, कश्मीर हीरो, हमारा बेटा, कश्मीर का बेटा, हमें फख्र है, हमारा सर बुलंद कर दिया इस बेटे ने। तो ये लहर जो कश्मीरियों के अंदर है, जो दुनिया ये नहीं देखना चाह रही थी कि हर साल इंडियन नेशनल डे के ऊपर कश्मीरी बॉयकट करते हैं, कश्मीरी जो है अपनी वॉचेस, जो घड़ियां हाथों में पहनी हुई हैं, वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे रखते हैं। जो दुनिया ये चीज नहीं देखना चाह रही थी, आज एक 21-22 साल बुरहान वानी ने भोखलाहट जो है पैदा कर दी पूरे भारत में। इतनी बड़ी दुनिया की दूसरी बड़ी फौज फरिया वो ऐसे सेलिब्रेट कर रही थी बुरहान वानी का कत्ल, जैसे कि उन्होंने पता नहीं किसको मार दिया। और हालांकि वो बच्चा जो है, बेशक वो कमांडर थे, नौजवान था हिजबुल मुजाहिदीन का, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव था। उसका शायद मेरी मालूमात नाक़िस हो, लेकिन शायद वो फील्ड में, मैदान में इतना उनका वो नहीं था। लेकिन इतने डरे हुए पोस्टर बॉय था वो उनका। और फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो सबको इजाजत है। हाफिज साहब, क्या 22 साल के एक लड़के से एक आर्मी को, जो कि सेकंड लार्जेस्ट आर्मी जैसे कि कह रहे हैं कुरैशी साहब, क्या उनको क्या खतरा था उससे? हर कोई उसको मिलिटेंट कह रहा है, हर कोई उसको टेररिस्ट कह रहा है। बिल्कुल वो टेररिस्ट नहीं था, वो सोशल मीडिया पर कश्मीर के तमाम लोगों से राब्ते करने वाला था, हर दिल में बसता था, एक महबूब नौजवान था। हाँ, अलबत्ता वो कश्मीर का केस ज़रूर पेश करता था।
ख़वातीन की जो बेहुरमती वहाँ की जा रही है वो सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को ज़रूर नुमायाँ किया करता था, और जनाब इंडियन आर्मी के जुल्म व सितम को वो पेश किया करता था। ये बर्दाश्त नहीं कर सके और उसको शहीद किया। ज़ाहिर है कि उस नौजवान की जो मोहब्बत थी लोगों के दिलों में, उस मोहब्बत ने सारे कश्मीरियों को मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये अल्लाह के फजल व करम से हम ये समझते हैं कि मसला एक शख्स का नहीं, और सच्ची बात है आज तो हर नौजवान बुरहान बन चुका है। आज कश्मीर के नौजवान ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स जो हैं इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं, और वो लोग सड़कों पर आए हैं जो इससे पहले कभी नहीं आए थे। जुल्म की जब इंतहा होती है तो फिर उसका यही नतीजा होता है, यही रद्द अमल होता है। तो ये मैं हकीकत समझता हूँ कि ये इंडिया के जुल्म क्या रद्द अमल है इस वक्त जो कश्मीर में नज़र आ रहा है। कर्फ्यू तोड़े जा रहे हैं, और जनाब जिस तरीके से वहाँ लोग जानें कुर्बान करने के लिए और माएँ जिस तरीके से अपने बेटे कुर्बान करने के लिए आ रही हैं, अब इंडिया का प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा ये पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है या हाफिज सईद करवा रहा है। अब दुनिया को इस तरह धोखा नहीं दिया जा सकता, ये हमेशा झूठ नहीं चला करता। तो आज इनको समझना चाहिए कि कश्मीर की मूवमेंट कश्मीरियों की है। राइट, हमारे साथ शबीर शाह साहब भी मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। शबीर शाह साहब, इस वक्त कश्मीर के हम क्या सोच रहे हैं, कश्मीर की अवाम इस वक्त क्या सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी आवाम के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, उनने हमें कभी तनहा नहीं छोड़ा है, और जिसमें हुकूमत भी है, हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं और दीनी जमातें भी हैं। हम सभी के शुक्रगुजार हैं कि वो मकबूजा कश्मीर के मजलूम लोगों की मदद सफारती सतह पे, सियासी सतह पे, इखलाकी सतह पे कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 दिनों से आप देख रहे हैं जो भारत की तरफ से जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त तकरीबन हमारे 36 नौजवान शहीद कर दिए गए हैं जो निहत्ते थे, सिर्फ वो इस तशद्दुद के खिलाफ सड़कों पे आए थे और उनकी सीनों पे, उनके सरों पे गोलियां लगा दी गई। टारगेट किलिंग्स थी, और 2000 के करीब इस वक्त SMHS हॉस्पिटल जो वैली का है उसमें है, सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में है, बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल में है। पैलेट गन से तकरीबन 7 नौजवानों की बिनाई खत्म हो गई है, और इस वक्त भी चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है। तब भी लोग आज़ादी के हक में और हक़ इरादत की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी मोहसिन मुल्क का भी बड़ा साथ रहा है। तो इस वक्त भी गमगीर हालात हैं, चारों तरफ गिरफ्तारियां की जा रही हैं, तलाशियां की जा रही हैं। पिछले 13 महीनों से मुझे भी घर में नजरबंद रखा है, गिलानी साहब को भी घर में नजरबंद रखा गया है। आज उन्होंने अटेम्प्ट किया था तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मतलब लीडरशिप जो प्रो मूवमेंट लीडरशिप है, जो आजादी पसंद लीडरशिप है, उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी जाती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस बिठाए गए। जो बार बार इंडियन मीडिया भी अगरचे बड़ी बायस रिपोर्टिंग हम देख रहे हैं, मगर उसके बावजूद वहां पे भी कुछ बेहतर आवाजें कहीं नजर आती हैं। क्या वजह बनी कि बुरहान 22 साल का एक नौजवान, इतना फर्क पड़ा? गम गुस्से की जो लहर हमने कश्मीर में देखी है, वो कहते हैं उसका जो कनेक्ट था नौजवानों के साथ वो बिल्कुल फर्क था। क्या ऐसी बात थी शख्सियत में बुरहान की जिसने बिल्कुल एक नई रूप फूंक दी इस मूवमेंट के अंदर? अल्लाह सुब्हान तआला ने उन्हें ये सलाहियत उसमें थी, ये सब कुछ अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से ही था। छोटी उम्र का नौजवान था और वो आज के जवानों का आइडल बन चुका है, और जवान उनको अपना हीरो समझते हैं, उमर मुख्तार समझते हैं इस वक्त के। लेकिन उसके साथ साथ भी कश्मीर ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उनके बरादर अकबर जो उनके बड़े भाई थे, उनको भी शहीद किया गया था एक जंगल में, और उनके वालिद को भी मैं सलाम करता हूँ, उस माँ को भी सलाम करता हूँ जो ये फरमाती हैं कि पहले खुदा, फिर मोहम्मद, फिर कुरान, फिर मेरा बेटा। तो बेटे को चौथी तरजीह दे रहे हैं। इसी तरीके से कश्मीर के सभी जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, आला कलिमतुल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए, आज़ादी के लिए। और उसमें आपने देखा होगा 7.5 लाख फौज यहाँ बिठाई गई हुई हैं। जब पाकिस्तान का 14 अगस्त का दिन आता है, 23 मार्च का दिन आता है, या क्रिकेट मैच होता है, तो दीवानावार लोग सड़कों पे निकलते हैं और पाकिस्तानी
परचम को लहराते हैं और जिवे जिवे पाकिस्तान की बात करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। 7.5 लाख और उसके यूज में उनको गोलियां मारी जाती हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि एक मुस्लिम उम्मा में एक वो मुल्क है जिसकी दाग भी ला इलाहा इल्लल्लाह पे पड़ी है, और वो मोहसिन मुल्क है और न्यूक्लियर पावर है, और उसको चाहिए कि जो हमारी जो वकालत वो कर रहा है उसमें वो तेजी लाने की जरूरत है। सफारती सतह पे भी और सियासी सतह पे भी एक दबाव बढ़ाना चाहिए हिंदुस्तान पे। ये बड़ी अहम बात आपने की है शाह साहब, और यकीनन इसी नुक्ते को हम आगे लेके चलेंगे, मगर पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी नौजवान क्या इस हवाले से सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। यूथ फोरम फॉर कश्मीर एक खास तौर पे एक ऑर्गेनाइज किया इवेंट कश्मीर के हवाले से, वहां पे नौजवान क्या कह रहे हैं, लेट्स वॉच दैट। भारत अपनी जाहिराना कार्रवाइयाँ किए हुए है और पहले तो उन्होंने एक कमांडर को शहीद किया और उसके बाद जो लोग अपना एक इजहार राय करने के लिए निकले थे, उसके साथ हमदर्दी करने के लिए निकले थे, उनके ऊपर अपना उन्होंने फौजी तसल्लुत इस्तेमाल किया और उनको वहाँ पर शहीद किया। यूनाइटेड नेशन और जितने दूसरी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये बता सकें कि एक दुनिया के अंदर एक ऐसी कौम भी है जो गुज़श्ता 6 दहाइयों के अंदर जुल्म तशद्दुद का उन पर किया जा रहा है और वो लोग अपना हक मांग रहे हैं। बुरहान वानी वो कश्मीरी मुजाहिद है जिसने कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ रहा था, उसको पिछले दिनों शहीद कर दिया गया है। उसकी शहादत पे कश्मीर में जो है एक कर्फ्यू वाली सूरत हाल है। दुनिया को बताना है कि उनको भी निकलना चाहिए भारत के जुल्म के खिलाफ, और यूएन को भी हम ये चाहते हैं कि यूएन भी इस चीज़ पे स्टैंड ले। सफारती महाज पर तेजी, पब्लिक सेंटिमेंट हम देख रहे हैं अहमद, हम देख रहे हैं कि वहां पर कश्मीर में एक मूवमेंट है, बट सफारती तौर पर कितना एग्रेसिव नजर आ रहा है आपको सब पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान जो इस वक्त कर रहा है वो शायद डिप्लोमेटिकली जो कर रहा है वो बहुत कुछ कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले मैं आपको फिर ये बताऊं कि इंडियन गवर्नमेंट जो इस वक्त क्या कर रही है। इस वक्त हमारे बड़े दोस्त हैं, आपको पता है आज दुनिया बहुत छोटी है, इंटरनेट है, हमारे अमेरिकन दोस्त हैं, पाकिस्तानी हैं, खुद इंडियंस हैं जो फेसबुक में काम कर रहे हैं, गूगल पे, वो हमें बता रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त जो है बहुत प्रेशर डाल रही है गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि जहां जहां बुरहान वानी की तस्वीरें हैं, जिन जिन लोगों ने अपने प्रोफाइल पिक्चर्स जो है वो डीपी लगाई है बुरहान वानी, उसको रिमूव किया जाए, और वो काम अनफॉर्चुनेटली शुरू हो गया है। और अकाउंट्स भी सारे सस्पेंड हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत जरूरत है हमें, पाकिस्तानियों को हम जज्बाती हो जाते हैं और हमें चाहिए कि हम भी काउंटर लॉबिंग करें, हम भी अब ईमेल करें और लिखें फेसबुक, उनको शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ, लेकिन उनको ये बताएं कि वन साइडेड इंडियन जो वर्जन है गवर्नमेंट का वो ना सुने। इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो टेररिस्ट है, दूसरा वर्जन जो है वो भी सुने। दूसरा वर्जन ये है कि ही इज अ यंग मैन, एजुकेटेड मैन, जो कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। एमनेस्टी हम भी कांटेक्ट करें हमारी गवर्नमेंट, हम कहेंगे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से कि आप कांटेक्ट अपनी गवर्नमेंट को ये कहें कि वो साथ साथ डिप्लोमेसी के, यूएन के, दूसरे साथ साथ ये गूगल, क्योंकि ये बहुत बड़ा फोर्स है, सोशल मीडिया ह्यूज फोर्स है, तो बहुत जरूरी है कि क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बड़ा क्वाइटली कर रही है फरिया, ये इंडियन गवर्नमेंट ने कोई इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने किसी ने स्टेटमेंट जारी नहीं की, वो क्वाइटली प्रेशर डाल रहे हैं। वो किस चीज का फायदा उठा रहे हैं? वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि उनके दफातर हैं फेसबुक के, गूगल के इंडिया में, तो वो प्रेशर डाल रहे हैं, उनका बिजनेस है, तो हमें भी काउंटर कर। नंबर 1 ये। सेकंड जो है फरिया, ये देखें कि कश्मीरियों को अभी मेरे बड़े भाई सईद शबीर शाह साहब ने उमर मुख्तार से कंपैरिजन किया बुरहान वानी को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए हम एक और भी मिसाल लेकर आते हैं कि कश्मीर ने आज अपना ची गिवारा पैदा किया, वो सिंबल रेजिस्टेंस का जिससे पूरी दुनिया मानती है, मतलब इसमें जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, जो कि एक बड़ा इंस्पिरेशन है यूथ के लिए। तो ये कश्मीर का ची गिवारा जो है वो पैदा हो गया है, और इसको हमें आगे इसको बढ़ाने की जरूरत है, इस चीज को, इसको हम आगे लेकर चलें इसको, क्योंकि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें, जो वीडियो हमारे पास हैं इंडियन सोल्जर्स के एम्बुलेंसेस रोक कर और वो जो इंजर्ड लोग हैं उनको निकालते हुए या अस्पतालों में हमला करके, ये वीडियोस मौजूद हैं सारी। तो ये जो इस वक्त हमारे पास हथियार है, और आप देखिए बौखलाहट भारत की कि मोदी साहब अफ्रीका गए हुए हैं विजिट के ऊपर, और वहां से जो है उनका अपना इंडियन मीडिया, मैं नहीं कह रहा या आप नहीं कह रही, ये उनका अपना इंडियन मेजर न्यूज़पेपर्स वो बता रहे हैं कि वो फोन कर रहे हैं प्राइवेटली कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने वहां पे मकबूजा कश्मीर में। जो वर्ल्ड मीडिया, उनको परेशानी ये नहीं है फरिया कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स कंडेनेशन या कश्मीर में क्या उनका इशू ये है, और हम अपने आप को बहुत नीचे दिखाते हैं फरिया,
اس میں ہم نہیں بھولیں کہ ابھی جو حالیہ میں NSG میں جو انٹری ہونے جا رہی تھی انڈیا کی وہ چائنا نے تو بلاک کی تھی, لیکن ون آف دا ریزنز وائی اٹ ڈڈ ناٹ انٹر از بیکاز آف اٹس ریکارڈ ان کشمیر. وائی انڈیا, کیوں بھارت ناکام ہوا سیکورٹی کاؤنسل میں مستقل رکنیت لینے میں, اس کا بھی ایک بڑا اہم وجہ کشمیر ہے. کشمیر جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے بھارت کے سامنے, اور اسے اس وقت ہم نے اس کو بٹھانا نہیں ہے, اس اجاگر کرنا ہے. آپ جو جس طرح آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں آپ نے جس طریقے سے اجاگر کیا اس چیز کو, جس طریقے سے آپ نے کیا ہے, یہ ہماری گورنمنٹ طریقہ کار ہونا چاہیے آفیشیل لیول کے اوپر. اگریسو ڈپلومیٹک پالیسی ہم بات کریں گے حافظ سعید صاحب سے بھی, برافی پہنچیں گے. اینڈ ویلکم بیک. کشمیر میں موومنٹ اٹھ گئی, مگر پاکستان کی ڈپلومیٹک پالیسی کیا ہوگی؟ اس وقت بھی طارق فاطمی صاحب کا سٹیٹمنٹ چل رہا ہے. کھل کر پاکستان نے اپنے موقف کا اظہار کیا. پرائم منسٹر نے کھل کر, آرمی چیف نے اس پہ بات کی. پرائم منسٹر نے ایسا سٹیٹمنٹ دیا کہ بھارتی میڈیا کو بڑا غصہ بھی آ گیا اس پر, وہ شاید بالکل بھی برداشت نہیں کر سکے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کشمیر کے حوالے سے ایک سٹرانگ سٹیٹمنٹ دے. حافظ سعید صاحب, پاکستان ڈپلومیٹکلی صحیح ہینڈل کر رہا ہے اس معاملے کو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزارت خارجہ کے بیانات آئے, وزیر اعظم صاحب بھی بولے, آرمی چیف نے بہت سخت مذمتی الفاظ کہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان کو بہت زیادہ آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہے. صرف بیانات کی حد تک کافی نہیں. انڈین میڈیا تو اتنی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب پاکستان کے لوگوں کی جذبات کی ترجمانی کر سکیں اور کشمیر کی بات کر سکیں, تو ان کی بات ہم چھوڑتے ہیں. صاف بات ہے اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان وکیل کی حیثیت سے کشمیر کے مسئلے کو لے کر OIC میں جائے. سلامتی کونسل کا اجلاس فوری طور پر پاکستان یعنی درخواست کرے طلب کرنے کے لیے کہ جس قدر وہاں قتل عام ہو رہا ہے اور ہسپتالوں میں گھس کر زخمیوں کو مارا جا رہا ہے, اس کی تو مثال دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتی. تشدد کی یہ انتہا جو ہو چکی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کو جگانے کے لیے پاکستان کے میڈیا کو, پاکستان کے حکومت کو, پاکستان کے اداروں کو اس وقت زبردست کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے انڈین میڈیا اس کو چھپا رہا ہے, اس کو تبدیل کر رہا ہے, پروپیگنڈے کی وہی پرانی سیاست اختیار کر رہا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرو, پاکستان کی جماعتوں کو بدنام کرو اور کشمیر کی آواز کو دباؤ. فیس بک بند کیے جا رہے ہیں, فیس بک کے اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ کام تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. تو اگر یہ کام ہو رہا ہے تو پاکستان اس وقت کشمیر کی آواز کو اٹھائے. پاکستان کا میڈیا, الحمدللہ مجھے واللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے شبیر شاہ صاحب کو رابطے میں لیا اور آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے ریسی صاحب اور سب لوگ بات کر رہے ہیں, تو ہمارے تمام میڈیا گروپس جو ہیں وہ اس مسئلے کو اٹھائیں. اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ فی الفور سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرے اور جناب وفود روانہ کرے اور دنیا کو بتائے کہ کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ صرف بیانات پر کام ختم نہیں ہونا چاہیے, یہ میری گزارش ہے جی. بڑی اہم بات آپ نے کی, اور ہم بتانا چاہیں گے کہ اس وقت فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں, اور قابل ٹیم مجھے یہ بتا رہی ہے کہ اس میں بہت زیادہ اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ خبریں یہاں پر آ جائیں گی, بھارتی میڈیا ہماری آواز نہیں دکھاتا. ہمیں اس بات پہ پھر امید ہوتی ہے, خاص طور پہ کچھ چینلز ایسے ہیں جو بہت زیادہ غور سے دیکھے جاتے ہیں کشمیر میں, اور کشمیری دیکھتے ہیں ان کو جو بیرون ملک ہیں, وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا وہ سب کچھ دکھائے جو بھارتی میڈیا نہیں دکھا رہا ہے. اس کی بھاری ذمہ داری اس وقت پاکستان کی میڈیا پر بھی ہے, اگر پاکستان کی حکومت پر ہے. شبیر شاہ صاحب, بھارتی حکومت کا جو ہم طریقہ کار دیکھ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں احمد, کہ ایک تو پریشر میں نظر آ رہے ہیں, اوپر سے اگریسو وہ اس حوالے سے ہیں کہ آپ اس کو نظر بند کر دو, ادھر گولیاں چلا دو, ادھر پکڑ لو. یہ کتنا آپ کے خیال سے کرامت ہوگا؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں بات چیت کرو, دوسری طرف وہ اس قسم کے کنڈے استعمال کر رہے ہیں. جی, پچھلے 68 سال سے وہ خاص کر
25 सालों से ये नुस्खे भारत की सरकार और उनकी एजेंसीज और जो 7.5 लाख फौज यहाँ हैं और जो वो यहाँ बैठे हुए हैं उनने बहुत सारे नुस्खे आजमाए हैं। कभी गोस्ट पॉलिसी, कभी कैच एंड किल हिम पॉलिसी, कभी टारगेट किलिंग, कभी घरों से उठा के हमारे 10,000 नौजवान लापता किए गए हैं, कभी कॉनन पोशपोरा का वाक़ा किया है, कभी जिगरपोरा का वाक़ा किया है। तो उस हवाले से उनने बड़े नुस्खे आजमाए थे और उनमें अल्लाह के फजल करम से वो नाकाम हो गए हैं। आज भी जो भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो दुनिया के सामने है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं एक दफा वो अमेरिका जाना चाहते थे लेकिन उनको वीजा तक भी नहीं मिला। लेकिन बाहर की दुनिया क्यों नहीं नोटिस ले रहा है, आलमी बरादरी इसकी नोटिस क्यों नहीं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, न्यूक्लियर पावर है, उनके सफारत खाने हैं, कश्मीर कमेटी को फाल बनाकर बाहर की दुनिया में भेजा जाए और उसमें कश्मीरीज को भी शामिल किया जाए। जैसे आज राहिल शरीफ साहब ने भी जो कोर कमांडर्स की मीटिंग थी उसमें कश्मीर के हवाले से बात की, हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के भी और हिज़्ब इख्तिलाफ के भी और खासकर दीनी जमातों के भी जिनने हमें कभी तनहा नहीं छोड़ा है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हमें बहुत सारे महजून पे काम करने की जरूरत है, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी और पोलिटिकल लेवल पे भी, और मॉरल सपोर्ट आपकी होनी चाहिए हम मजलूमों की, क्योंकि हम नहते हैं और हमें मारा जा रहा है, हमें काटा जा रहा है। इस जमीन के खतरे पे मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है वो दुनिया में इसकी कहीं मिसाल नहीं मिल रही है। 5 लाख लोग आज तक हमने शहीद किए गए हैं। आज बुरहान के साथ 36 नौजवान 2000 के करीब हैं, पैलेट गन्स देख लीजिए, आंखों की बिनाएं छीनी जा रही हैं, हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, हर चीज से। और हम इस वक्त ये भी चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन से अपील की जाए और पीस कीपिंग फोर्स यहाँ भेज दिया जाए ताकि जो मारदाट भारत की तरफ से हो रही है उसमें रुकावट है। और आलमी जो रेड क्रॉस है यहाँ के बच्चों के लिए फूड आइटम्स की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है। अगरचे यहाँ फलाई जो मुखैर हजरात है, नौजवान हैं, दीनी जमातें हैं, उनने कैंपस लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी कमी है। जो आज भारत कर रहा है उसमें तो एक जंग छेड़ दी है मजलूम कश्मीर के साथ, लेकिन आपकी ताकत है। जी शबीर शाह साहब, खास तौर पे आपका ये मैसेज जो आपने कहा है कि यहाँ पे फूड आइटम्स की जरूरत है, यहाँ पर दीगर वॉलंटियर्स की मदद की जरूरत है, ये सबने सुन लिया है एंड आई एम श्योर कि इसके हवाले से जरूर सोचा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। अहमद, एक जो बड़ी अहम बात यहाँ पे नजर आ रही है, कई साल हो गए, जनरेशंस हो गई और भारत ने पूरी कोशिश कर डाली अपनी फोर्स के थ्रू और बड़े उन्होंने तरीके किए, इंटरनेशनल लॉबिंग की कि इस मसले को कुछ और बना के पेश किया जाए, मगर दोबारा बार बार नजर आता है कि ये भारत जितनी भी कोशिश करे उसके जो एसेंस उसको छुपा नहीं सकता। एक ये अपनी तरह की मूवमेंट है, आजादी चाहते हैं लोग, ये कहीं से किसी की प्लांटेड मूवमेंट नहीं है, ये वहां के शहरियों की मूवमेंट है और जो मर्जी करे भारत सच फिर बार बार निकल कर आ जाता है। ये इसका सेहरा तो जाता है सीधा सीधा फरिया कश्मीरी कौम को। क्या बहादुर कौम है, क्या कहानियां हैं बहादुरी की कश्मीर में जो कुछ तो हमारे पास पहुंची हैं लेकिन दुनिया को अभी तक नहीं पता उन बहादुरी की कहानियां जो शब्बीर शाह साहब ने जैसे बताया अभी, जो वालदा मोहतरमा हैं बुरहान वानी की, इस तरह की कहानियां सैकड़ों कहानियां हैं कश्मीर के अंदर। और क्या कौम है फरिया ये कि जिसने 50 साल से जो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इस जुमले से आगे नहीं बढ़ते थे कि कश्मीर के ऊपर हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान और भारत को कि वो हल करें, इससे आगे वो नहीं जाते थे, कभी भी नहीं गए। 50 साल से कम से कम 50 ईयर्स से तो नहीं गए कि इस कश्मीरी कौम ने मजबूर कर दिया इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल हैं कि वो स्टेटमेंट अब दें। और ये रिवायती स्टेटमेंट नहीं, अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो बराह रास्त जो ह्यूमैनिटेरियन जो इंसानी वो सिचुएशन है कश्मीर मकबूजा कश्मीर के अंदर, उस पर बराह रास्त कमेंट करें, जो कि एक बहुत बड़ा थप्पड़ है भारत के चेहरे के ऊपर, बहुत बड़ा। इट्स अ ह्यूज, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है भारत के लिए वो स्टेटमेंट जो कि वेबसाइट के ऊपर बैन की मून सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट के ऊपर पोस्टेड है। तो ये आप सोचिए वो बड़ा मुल्क भारत, वो जिसने अपनी मोदी साहब घूमते फिरते हैं दुनिया भर के अंदर, इस तमाम तर एफर्ट्स जिनकी तरफ इशारा आपने किया, उन सब के बावजूद
اس کشمیری قوم نے جو کہ حصار میں ہے, جس کو سیج میں ہے ہر طرف سے, اس نے مجبور کر دیا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو کہ وہ ان تمام پریشر سے, جو سیاسی پریشرز ہوتے ہیں, ان سے ہٹ کے وہ بیان دیں اس معاملے کے اوپر جس میں بھارت کہتا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی ہے. یہ بہت بڑا, اٹس اے ہیوج اچیومنٹ, اٹس اے ہیوج اچیومنٹ. اور کشمیریوں نے ہمیں بھی متحد کر دیا. ہماری, ان کو سہرا جاتا ہے کشمیری قوم کو کہ پاکستانیوں کو بھی متحد کر دیا. ہم لاکھ ڈیوائیڈڈ ہوں فریہ یہاں پہ اپنی پالیٹکس میں, ہر چیز کے اندر, لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے 4-5 دنوں سے پاکستانی قوم جو ہے, کہ ابھی ہم جو آپ نے بھی کلپس دکھائے ہیں, وہاں پہ میں نے پاکستانی فیملیز دیکھی. میں نے ایک باپ, ایک ماں اور ایک ان کی 12 سال کی بیٹی دیکھی جو آئے ہوئے تھے اور اس شدید گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں. صرف ایک جذبہ ہے کشمیریوں کے ساتھ, بالکل جذبہ. اور ہر پولیٹیکل پارٹی ایک ہی بات کر رہی ہے. حافظ سعید صاحب, کیا ہم پولیٹیکلی کوشش کریں اکٹھے ہو کے, کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ پاکستان کے تمام سیاستدان کم از کم اکٹھے ہو جائیں؟ لیکن ایک اور خاص طور پہ جو ذکر ہوا, نیگیٹو ہے تھوڑی سی بات, لیکن میں ڈسکس کروں گی کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بار بار کہا گیا کہ وہ ان کا کردار کیا ہے اس میں. دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیر کا مسئلہ اس سطح پر اٹھ چکا ہے کہ حکومت, اپوزیشن پارٹیاں ساری متحد ہو کے, اور اس وقت ایک پورا اسمبلی کا سیشن ہونا چاہیے. ابھی تک اسمبلی کا سیشن تک نہیں ہوا کہ اس کے اندر زبردست قرارداد منظور کی جائے اور ہم فوراً اسلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جائے. بان کی مون نے بیان تو دے دیا, کشمیر کے حق میں دے دیا, کشمیریوں کی جدوجہد آزادی پر. صرف سچی بات ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا بیان کافی نہیں ہے, ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ سلامتی کونسل کے سیکرٹری جنرل کا بیان کافی نہیں ہے. کیا اس وقت کشمیر کی صورتحال یہ حق نہیں رکھتی کہ بان کی مون سلامتی کونسل کا اجلاس کشمیر کے مسئلے پر بلا کے جناب بات سنیں, بات کریں اور اس مسئلے کے حل کے لیے یعنی انڈیا پر دباؤ ڈالا جائے؟ اس وقت حق تو اس بات کا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور صرف بیانات سے اشکشوئی کر رہے ہیں تو یہ تو پہلے بھی ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف پسندی دنیا کے اندر کوئی چیز ہے تو پھر اس کو فوری طور پہ کیا جائے. اور اس میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ذمہ داروں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا گیا, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. شبیر شاہ صاحب نے کشمیر کمیٹی کا ذکر کیا, آپ نے کیا. سچی بات ہے کہ مولانا صاحب ماشاءاللہ بڑی دیر سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, 2 حکومتوں کے اندر انہوں نے یہ چیئرمین شپ کی ہے, تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے اس وقت اس حقیقت کو پیش کر دیں. اور اگر نہیں کیا جاتا تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. لیکن میں مولانا سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب باہر نکلیں, یعنی چھوڑ دیں پاکستان کی سیاست. اس وقت قتل ہو رہا ہے کشمیر کے اندر, خون بہہ رہا ہے کشمیر کے اندر, اور اگر کشمیر کی داد رسی ہم کریں گے تو اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے گا. تو اللہ کے لیے چھوڑ دو, اختلافات جھگڑے ختم کرو اور نکلو ملک سے باہر اور دنیا کو بتاؤ کشمیر کی صورتحال. مولانا فضل الرحمان بھی نکلیں اور جناب ہمارا مشیر خارجہ بھی نکلے, اور سارے نکل کر اور سارے سفارت خانے متحرک ہو کر اس مسئلے کو جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ اگر نہیں, آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بڑی اہم بات کی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. احمد کا بھی, شبیر شاہ صاحب کا بھی, آپ کا بھی. ہم نے بڑی کوشش کی مولانا فضل الرحمان سے کہ ایک سٹیٹمنٹ میں آ کر, مگر انفارچونیٹلی ابھی وہ بہت بزی ہیں. آج ان کی پرائم منسٹر سے میٹنگ بھی تھی. آئی ہوپ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وی ول بی ایبل ٹو گیٹ ان ٹچ ود ہم, اور شاید وہ کشمیر کے حوالے سے ہمیں کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں. مگر معاملہ صرف مولانا فضل الرحمان کا نہیں ہے, ہم سب کا فرض ہے ہم اس پر آواز اٹھائیں. فیس بک پر, ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے, I'll show that to you. مین وائل اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.